बेटे पीयूष जी अभी देख लीजिए, अभी आ गया मैं। एक बज तो बजने वाला है, इसको और नीचे करना पड़ेगा। ठीक दिख रहा है? अभी ठीक दिख रहा है। एक मिनट मैं करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ सर। हेलो, आ गया ना अभी ठीक? फोटो कैसे नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ना ठीक से, देखिए। नहीं, फिर से देखिए, एक मिनट और देखिए ठीक से। हाँ हाँ ठीक है। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? मुझे देख पा रहे हैं?
Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Sinku Kumar Singh, working as a head Department of Physical Education in Swami Ramanand Tirth Mahatma University, Nanded. Today, the topic of my presentation is a therapeutic exercise is a natural medicine for lifestyle disease patients. First of all, it my deep sense of gratitude to Honorable Dr. Piyush Jain for giving me an opportunity as an expert in this event. Secondly, I would like to congratulate Physical Education Foundation of India to recognize as a national sports promotion organizations from Ministry of Sports, Government of India recently. All the credits is went to Honorable Piyush Jain ji. First of all, I would like to clear the concept of medicine before all of you. Medicine is a science or practice to diagnosis, treatment, and prevention of any type of disease. Lifestyle disease is declared by the World Health Organization in the year 1984. The lifestyle disease, such as like a blood pressure, diabetes, cardiovascular disease, insomnia, and obesity. Lifestyle disease occurs or happens due to the poor or bad lifestyle habits. The one of the first reason or one of the prominent reason for lifestyle disease is a sedentary lifestyle. Sedentary lifestyles means the peoples or individuals do not take part in any sporting activity or any physical activity. Due to this activity, the peoples are greatly suffer from the blood pressures, diabetes, cardiovascular disease, and other lifestyle disease. So first of all, I would like to compare the medicine of blood pressure and the medicine therapeutic exercise. Actually, BP is the driving force of blood through its circulatory systems, and mainly there are four types of medicines that treated blood pressure. First is the angiotensin 2 receptor blockers. These type of medicines that block a sudden enzyme or hormones that dilate our blood vessels and blood easily pass through a entire body system. Secondly, ACE, angiotensin converting enzyme. Third is the diuretic, and fourth is the beta blockers. But there is a sudden side effects of these medicines. In beta blockers, I would like to discuss about the beta blockers. Beta blockers is block a sudden type of hormones that responsible for the heart attack or abnormal cardiac rhythms. So beta blockers such as like several medicines. This is the metoprolol and other beta blockers. Second thing, the diuretics. Actually, diuretics is a medicines that used for the reduce of blood or blood pressure or pass the salt through the urinations. This is control blood pressure. सेकेंड थिंग, बहुत सारे ब्लड प्रेशर्स के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन इसके सडन साइड इफेक्ट्स है. पहला साइड इफेक्ट्स ये होता है कि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के प्रकार में अगर हम टेलमिसर्टेन या एजिलसर्टेन या अदर टाइप के हम मेडिसिन यूज करते हैं, तो उस मेडिसिन में ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर ठीक तो हो जाता है, वो सर्टेन हार्मोन्स को रोक देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक से रेगुलेट कराता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देता है. डायलेट मींस वाइडनिंग द ब्लड वेसल्स, लेकिन उसके सडन साइड इफेक्ट्स होते हैं. दूसरे टाइप का जो मेडिसिन है जिसका हम यूज करते हैं वो है हमारा डायोटिक्स. एक्चुअली डायोटिक्स का यूज हम स्पोर्ट्स में भी करते हैं
और उसका यूज करते हैं हम वेट को कम करने के लिए या वेट को घटाने के लिए। लेकिन ये जो डायोटिक्स है वो एक्चुअली जो शरीर में सॉल्ट की मात्रा है, नमक की मात्रा है, उसको कम करता है, और नमक की मात्रा कम होने से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और शरीर में फ्लूइड रिटेंशन नहीं होता है। तीसरा है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है? एक्चुअली हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज भी हम स्पोर्ट्स में करते हैं, जो डोपिंग के तहत आता है। ये एक सडन टाइप का एंजाइम से, सडन टाइप का हार्मोन्स है, जिसको इपिनेफ्राइन हम कहते हैं। वो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जनरली वो हमारा जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है उसको जो है सो डैमेज करता है, और वो ठीक से रेगुलेट नहीं कर सकता है, और उसका एबनॉर्मल रिदम होता है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से बहुत सारे जो है सो हमें जो है सो उसके फायदे हैं। इवन एक अभी ब्लड प्रेशर का न्यू कंसेप्ट आया है, कांस्टेंट ब्लड प्रेशर। इसमें ऐसा होता है कांस्टेंट ब्लड प्रेशर या रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर, इसमें दवा खाने के बाद भी, मेडिसिन खाने के बाद भी हमारा ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाता है। इवन हम ये चारों प्रकार का बीटा ब्लॉकर्स, डायोटिक्स, एआरबी, एसीबी, ये साथ मिला के भी खाए तो भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर हम सडन एक दिन में कम से कम 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का हम लो इंटेंसिटी या लो इंपैक्ट एक्सरसाइज या मॉडरेट इंपैक्ट एक्सरसाइज करें, हल्का रनिंग, वेट, वॉकिंग, तो उसमें क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन देता है, उसमें मेडिसिन देने के बाद आपको ये बताता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कि आप अपने डाइट पे कंट्रोल कीजिएगा और दवा के साथ डेली आप एक्सरसाइज या डेली जो है तो वॉकिंग कीजिएगा। लेकिन अगर प्री हाइपरटेंशन है, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 2 फेज में होता है। जो पहला फेज है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और दूसरा डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से लेकर के 140 तक है तो नॉर्मल है, और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 80 से लेकर के 90 तक है तो भी नॉर्मल है। लेकिन यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा जाता है और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा जाता है तो वो प्री हाइपरटेंशन का स्टेज आता है। ऐसे में डॉक्टर आपको एसीबी, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देता है, जो शरीर में एंजियोटेंसिन हार्मोन है उसको ब्लॉक करता है, और उसकी ब्लॉक होने से हमारा ब्लड वेसल्स जो है सो डायलेट होता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है, और डायमीटर बढ़ने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छे से हो जाता है। दूसरी जो मेडिसिन है आपको बीटा ब्लॉकर्स, वो बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक तो करता है लेकिन उसका सडन साइड इफेक्ट होता है। उसका सडन साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमें जो है सो डेजीनेस आता है, हमें कमजोरी फीलिंग होती है, और विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि प्री हाइपरटेंशन में हम एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, और एक्सरसाइज से नॉट ओनली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, बल्कि आपके जो शरीर के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है, जो शरीर के डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स है, वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम एक्सरसाइज मैकेनिज्म बताना चाहता हूं, एक्सरसाइज का मैकेनिज्म क्या होता है कि थेरेपेटिक एक्सरसाइज वैसा एक्सरसाइज जिसका उद्देश्य हमारा जो है रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज होता है। स्पेशली हम स्पोर्ट्स मेडिसिन में इसका यूज, थेरेपेटिक एक्सरसाइज का यूज करते हैं कि इंजरी के जब खिलाड़ी को चोट लग जाता है, उसको इंजरी होता है, तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। लेकिन आजकल मॉडर्न मेडिकल टेक्निक में भी इसका यूज हो रहा है, और विशेषकर जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसको हम प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो आप जो है सो तुरंत दवा मत लो। यदि आपका एज फैक्टर ठीक से 40 से कम एज है तो आप एक्सरसाइज चालू करो सुबह शाम। यदि आप 90 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, उसको डिवाइड करके 1 घंटे 30 मिनट या 45 मिनट लो इंटेंसिटी और मीडियम इंटेंसिटी से, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और इसके बहुत सारे कैसे कंट्रोल होता है ये मैं बताता हूं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा जो कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन है, जो ब्लड का पंपिंग एबिलिटी है, वो बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उससे ब्लड पंप होता है। एक बार में हमारा हार्ट जो है सो 70 ml ब्लड पंप करता है। लेकिन यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो बढ़ के 90 से 110 ml तक वो ब्लड पंप करता है एक स्ट्रोक में।
और ये पंपिंग एबिलिटी जो होता है कि हमारा ब्लड का ड्राइविंग फोर्स को बढ़ा देता है, और ड्राइविंग फोर्स के बढ़ने के वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है शरीर का वो ठीक से रेगुलेट करने लगता है। सेकंड थिंग, यदि हम दवा खाते हैं तो हमारा जो कार्डियक मसल्स है जिससे हमारा हार्ट बना हुआ है, एक्चुअली ब्लड प्रेशर इज द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ब्लड प्रेशर एक प्रकार का हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारी है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसे साइलेंट किलर भी जाना जाता है। भारत में लगभग 30% व्यक्ति ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी उनको लगा हुआ है। इसमें जो अर्बन एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं उनको लगभग 35%, और जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको 25% ऐसे बीमारियां है, एज पर द रिपोर्ट पब्लिश बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च लास्ट ईयर। सेकेंड थिंग, दवा खाने से हमें हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होता है और हमारे हार्ट के मसल्स वो वीक हो जाते हैं, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। सेकेंड थिंग, जो हमारे हार्ट के वाल्व है वो भी क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में स्टेनोसिस बोलते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने से इस पे जो है सो हार्ट के मसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बशर्ते कि इसका बेनिफिट यह है कि हार्ट के मसल्स जो है सो हमारे मजबूत हो जाते हैं, और जो स्ट्रेंथ एबिलिटी है और स्ट्रेचिंग एबिलिटी हार्ट का है, जो कार्डियक मसल्स का है, वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड, जो हम डायोटिक्स लेते हैं, डायोटिक्स एक ऐसा मेडिसिन है जो हार्ट अटैक के बाद या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये जो डायोटिक्स है वो हमारे स्पोर्ट्स में भी, जिसमें वेट कैटेगरी इन्वॉल्व है, जिस खेल में वेट कैटेगरी इन्वॉल्व है, जैसे हमारा बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, जूडो हो गया, ऐसे खिलाड़ी इसको वेट कम करने के लिए करते हैं, जो एक डोपिंग के श्रेणी में आता है और एक प्रतिबंधित दवा है। लेकिन ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो फ्लूइड रिटेंशन है, जो इडियमा का फॉर्मेशन होता है ब्लड में, उसको रोकता है, और इडियमा फॉर्मेशन रुकने की वजह से नमक को वो यूरिनेशन के माध्यम से बाहर निकालता है, और इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक्सरसाइज करने के बाद हमें पसीना आता है, और पसीना के माध्यम से ही जो शरीर में अधिक नमक की मात्रा है वो बाहर आ जाता है, और ब्लड में फ्लूइड रिटेंशन नहीं हो पाता है, इडेमा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और शरीर में ठीक से जो है सो ब्लड प्रेशर, ठीक से ब्लड सर्कुलेट होता है। दूसरी चीज, जब हम डायोटिक्स का यूज करते हैं, जो हमें बाजार में डायोटिक्स की भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, उसके बाद आपको कुछ लूप डायोटिक्स है, जैसे आपको लूप डायोटिक्स से क्या होता है, बहुत ही मात्रा में यूरिनेशन होता है, जिसमें फुरसामाइड और टोरसामाइड आपको बाजार में ये मिल जाएगी, और इनका जो ब्रांड नेम है वो भी आपको विभिन्न नामों से मिल जाते हैं। तीसरा जो है वो है क्लोरोथाइलाइडोन। ये भी क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार का डायोटिक्स है, जिसका यूज हम ब्लड प्रेशर में करते हैं। लेकिन डायोटिक्स के यूज करने से हमें एक हाइपोनेट्रीमिया मींस हमारे ब्रेन में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, और ब्रेन ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है, हमें चक्कर आ जाता है, हम गिर सकते हैं, डेजीनेस आ जाता है, शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, मसल्स भी हो सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। लेकिन हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर का जो सडन मात्रा में जो भी नमक की मात्रा है वो शरीर से पसीने के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, और एंटीटॉक्सिन्स का भी जो है सो शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, एक्सरसाइज जो है सो एक तरह से डायोटिक्स का भी काम करता है। थर्ड, जो लास्ट हम यूज करते हैं वो है आपको बीटा ब्लॉकर्स या अल्फा ब्लॉकर्स। ये भी जो है सो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हमारे हार्ट रेट को जनरली कंट्रोल करने के लिए होता है, जिनको ब्रेडिकार्डिया मींस दैट आपका हार्ट रेट 100 से जो है सो पल्स रेट 100 से ज्यादा है, उसको ब्रेडिकार्डिया में करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं, और वो बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, हमें हार्ट को रिलैक्स करता है,
जिससे ब्लड का शरीर में सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि बीटा ब्लॉकर से बहुत सारे जो है सो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिससे किडनी भी खराब हो सकते हैं और भी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं शरीर में। और एक ब्रेडिकार्डिया होता है जिसमें सडनली हमारा जो पल्स रेट बहुत लो हो जाता है, जिससे जो है सो हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। इसका साइड इफेक्ट है। एक्चुअली बीटा ब्लॉकर्स का भी यूज हम स्पोर्ट्स में करते हैं। वो हमारे क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है और शूटिंग आर्चरी में हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, ए ब्लड प्रेशर के मेडिसिन का कोई ना कोई जरूर साइड इफेक्ट है, लेकिन हमारे जो शरीर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्चुअली एवरी एक्सरसाइज, यदि आप जो है सो एरोबिक एक्सरसाइज छोड़ के एनारोबिक एक्सरसाइज ले, एनारोबिक एक्सरसाइज को छोड़ के सारे एक्सरसाइज थेरेपैटिक एक्सरसाइज के श्रेणी में आते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण हम आपको बताया कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। इससे क्या होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आजकल क्या कर रहे हैं कि आजकल के बच्चे या आजकल के लोग खेल में कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं और ज्यादा क्या कर रहे हैं कि वो चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन की वजह से लोग जो है सो लैपटॉप पे खेल रहे हैं, लोग मोबाइल फोन पे खेल रहे हैं, फेसबुक पे खेल रहे हैं। इससे हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से हमारा शरीर के जो मसल्स है वो ठीक से काम नहीं कर पाते। हमारा हार्ट जो है सो ठीक तरह से जो है सो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि हमारा जो है सो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक और मेडिकल्स में एक और टर्मिनोलॉजी यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस जहां ब्लड प्रेशर जहां पास होता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो या तो हार्डनिंग हो जाता है या डैमेज हो जाता है या उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे हमारा खान पान ठीक नहीं होना, हम तेल मसाले बहुत खाते हैं, हम स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, हम स्मोकिंग के साथ साथ ज्यादा जो है सो शराब का भी जो है सो सेवन करते हैं। और इसके अलावा जो भारतीय लोग हैं ज्यादा नमक की मात्रा खाते हैं विदेशियों के, यूरोप के पीपल्स के कंपेयर। इसमें क्या होता है, ज्यादा नमक से भी हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए हमें ये आवश्यक है कि हम ऐसे चीजों को जो है सो अवॉइड करें और डेली कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम जो सो पार्टिसिपेट करें, जिससे हमारा शरीर ठीक बना रहे। दूसरी चीज, यदि हम ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो उसके दूसरी बीमारी होने की भी चांसेस है। लेकिन यदि हम एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें दूसरी बीमारी न होने की संभावनाएं कम हो जाती है, जिसमें डायबिटीज भी है, किडनी रिलेटेड डिजीज भी है और ब्रेन से संबंधित भी डिजीज है। दूसरे प्रकार का जो बीमारी है जो आज बहुत मात्रा में भारतीय लोगों को मिलता है वो है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया के मतलब नींद को नहीं आना। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आजकल के जो यूथ है, आजकल के जो युवा है, लेट नाइट तक टीवी देखते हैं, लेट नाइट तक फेसबुक पे खेलते हैं, लेट नाइट तक व्हाट्सएप पे खेलते हैं, जिससे जो है सो उनको एक ऐसा हैबिट आ जाता है कि जो है सो बाद में उनको नींद नहीं आता है। इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सडन मेडिसिन देता है और इस मेडिसिन के खाने की वजह से आप इसके हैबिचुएटेड हो जाते हैं और हैबिचुएटेड होने की वजह से आपको मेडिसिन की आदत लग जाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी मेडिसिन हो उसका कोई ना कोई सडन साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इंसोमेनिया में क्या होता है, जब आप मेडिसिन लेते हैं तो ब्रेन में जो सडन टाइप के जो केमिकल्स है, जैसे सर्टोनिन है, डोपामाइन है, एसिटिल्कोलाइन है, उनका सेक्रेशन तेज हो जाता है, जिससे आपको नींद आता है। लेकिन नींद कितना आता है, कभी कभी आपको 10 घंटे भी नींद आते हैं, कभी कभी 8 घंटे भी नींद आते हैं, कभी और भी जो सो उसका मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ता है नींद लेने के लिए। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो है सो नेचुरली, जैसे हम एक्सरसाइज कोई चालू करते हैं तो नेचुरली हमारा जो शरीर है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेने की क्षमता तेज हो जाती है और ब्रेन में एसिटिल्कोलाइन, सर्टोनिन और डोपामाइन जैसे केमिकल सब्सटेंस का सेक्रेशन तेज हो जाता है और आप उसको रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्स फील करने की वजह से क्या होता है, आपको अच्छी तरह से नींद आती है और इसके अलावा
आपके जो है सो जो मांसपेशी है, शरीर के अंदर जो मांस है भी जो है सो मजबूत होता है। सेकंड थिंग, कभी भी आप जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से जब आप इंसोमेनिया का पेशेंट है तो हमें ये ध्यान रहे कि हमें एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी से नहीं करना है। हाई इंटेंसिटी से इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से सडन मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, उसी तरह से यदि आप रॉन्ग और गलत स्टाइल से एक्सरसाइज करेंगे, या आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा में, या इनोरेबिक मतलब आपका इंटेंसिटी बहुत हाई, छोटी ड्यूरेशन का एक्सरसाइज करेंगे, तो इसका जो है सो आपके शरीर पे जो है सो एडवर्स इफेक्ट्स हो सकता है। दूसरी चीज, आजकल एक स्ट्रेस, लगभग 80% भारतीयों की स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस का कारण ये है कि इससे न केवल ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे आपको डायबिटीज भी होता है, और इससे आपको जो है सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी आते हैं कभी कभी। तो आपको जो है सो स्ट्रेस की वजह से जो है सो हार्ट अटैक भी आते हैं, सडन कार्डियक फेलियर हो जाता है, और आपको नींद नहीं आने के कारण भी एक जो है सो है स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस कैसे होता है, इसके लिए हम आपको सबसे पहले इसका मैकेनिज्म को समझाते हैं। जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा जो है सो निगेटिवली सोचना चालू करते हैं, तो हमारा शरीर में जो है सो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं, नॉरफिनफ्राइन और इपिनेफ्राइन नाम का ये हार्मोन्स है, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जो हमारे शरीर में जो है सो ग्लैंड्स है, एड्रेनालिन जो किडनी के ऊपर अवस्थित रहता है, वहां से इसका सेक्रेशन हो जाता है। और इसके सेक्रेशन होने की वजह से हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाता है, मतलब उसको हम साइंटिफिक भाषा में उसको वेसो कंस्ट्रिक्शंस कहते हैं। वेसो कंस्ट्रिक्शंस में क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शंस होने से हमारा जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्त वाहिका का डायमीटर कम हो जाता है, और उसमें ठीक से हमारा ब्लड जो है सो पास नहीं हो पाता है। जब ठीक से ब्लड पास नहीं हो पाता है तो क्या होता है, हार्ट ज्यादा काम करना पड़ता है, और हार्ट को ज्यादा काम करने की वजह से, रेगुलर ज्यादा काम करने की वजह से हमारे हार्ट की जो मांसपेशी है, हार्ट के जो दूसरे ऑर्गन्स है, वो जो है सो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और वो फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज चालू करते हैं, जैसे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी चालू करते हैं, या कोई भी हम स्पोर्टिंग एक्टिविटी चालू करते हैं, तो हमारा पीछे एक ग्लैंड है, जिसको उस ग्लैंड को हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, वैसे ही इंडोफ्राइन नाम का एक हार्मोन का सेक्रेशन चालू हो जाता है, और इसके अलावा और भी जिसको एसिटोकोलाइन नाम का हार्मोन्स जो हमारा ब्रेन में मौजूद रहता है, उसका सेक्रेशन चालू हो जाता है। और ये जो आपके स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल्स, नॉरफिनेफ्राइन, इनका वो विरोध करने लगता है, और इसके विरोध करने की वजह से हमारा जो है सो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, और स्ट्रेस जो है सो कम हो जाता है। स्ट्रेस कम होने की वजह से हमें जो है सो नींद भी आती है, और जो स्ट्रेस का नकारात्मक परिणाम शरीर पे होने वाला है, वो नकारात्मक परिणाम कम हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस जो है सो एक ब्लड प्रेशर का भी कारण है। आजकल कॉलेज में, इवन इन द हायर एजुकेशन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन द टेक्नोलॉजी कॉलेजेज, बहुत सारे आपने देखा होगा कि उनके जो स्टूडेंट्स है, उन पे बहुत सारे एकेडमिक लोड रहते हैं, और उसके वजह से, एकेडमिक लोड की वजह से उनको एकेडमिक स्ट्रेस बढ़ता है। फाइनली वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आने की वजह से उनमें हार्ट अटैक या आत्महत्या, सुसाइड की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। तो हमारा कहने का उद्देश्य है कि हमें किसी न किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा जो है सो भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसका जो पहला उद्देश्य है वो है कि गांव-गांव तक स्पोर्ट्स को पहुंचाना, गांव-गांव तक फिजिकल एजुकेशन को पहुंचाना, और लोग फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से शरीर को जो है सो ठीक कर सके। अब जो नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज की श्रेणी में आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी है, और more than 60% of the people in India loses their life due to the cardiovascular disease। और भारत में
ये आजकल बहुत बढ़ रहा है। इवन जो यंग जनरेशन है वो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से जो है सो उनसे उनको जो है सो मौत हो जा रही है। इसका कारण भी हमारा सडन और बैड लाइफ स्टाइल है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये क्या होते हैं? हमारे जो है सो आर्टरीज में जमा हो जाते हैं, और ये आर्टरीज में जमा होने से जमा होने की वजह से क्या करते हैं? ये आर्टरीज में ठीक से ब्लड पास नहीं हो पाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। मैं आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर समझा देता हूं। हार्ट अटैक मींस आदमी की मृत्यु नहीं होती है हार्ट अटैक में, लेकिन कार्डियक अरेस्ट मींस द पीपल इज एक्सपायर्ड और उनकी जो है सो मृत्यु हो जाना, डेथ हो जाना। सेकेंड थिंग, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से आपको जो है सो शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल्स भी बोलते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल, इनकी जो है सो मात्रा जो है सो बढ़ती नहीं है। एक्सरसाइज उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से जो है सो बाहर कर देती है। लेकिन एचडीएल एक लिपिड में, कोलेस्ट्रॉल में एक ऐसा कंपोनेंट है एचडीएल जो बढ़ता है, और एचडीएल हमारा क्या करता है? शरीर में ब्लड सर्कुलेट को ठीक रहता है और हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है? शरीर में ब्लड ठीक सर्कुलेट करता है। लेकिन जब शरीर में प्लेक्यू बनता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स के और एलडीएल वीएल की वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आते हैं, कोरोनरी ब्लड वेसल्स आर्टरीज में, तो उसमें क्या होता है? डॉक्टर आपको एस्टेटिन नाम का मेडिसिन देता है। एस्टेटिन मींस इसमें दो प्रकार के जनरली कैटेगरीज है, जिसको एट्रोवेस्टेटिन एंड एरोसुवेस्टेटिन बोलते हैं। एट्रोवेस्टेटिन मींस एट्रोवा नाम का दवा आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए देते हैं। या फिर रोसुवेस्टेटिन में रोसुवेस या रोजडी नाम की दवा जो है सो आपको मेडिकल स्टोर में मिलता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करें तो ये जो प्लेक्यू है, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है जो जमा होते हैं हमारे आर्टरीज में, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, वो हमारा हार्ट का पंपिंग एबिलिटी इतना रहता है, हमारा कार्डियक आउटपुट, मतलब 1 मिनट में हमारा ब्लड जो पंप करता है, जनरली 1 मिनट में ब्लड हार्ट जो है सो 5 लीटर ब्लड पंप करता है। लेकिन हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, तो ये आउटपुट हमारा बढ़ जाता है, और जो ब्लड का ड्राइविंग फोर्स होता है, जो ब्लड के ड्राइविंग फोर्स की वजह से जो भी प्लेक्यू या ट्राइग्लिसराइड्स आर्टरीज में जमा है, ब्लड वेसल्स में जमा है, उसको ब्लड क्या करता है? उसको हटा देता है, उसको जमा नहीं होने देता है। सेकेंड थिंग, ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी जो सो एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म तक यदि आपका ब्लड प्रेशर है, एक्चुअली ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर या स्वीट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि हमें शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन ये ब्लड प्रेशर क्या करता है? हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसको नैरो करते रहते हैं, और एक समय इतना नैरो हो जाता है कि ब्लड ठीक से जो है सो आर्टरीज में पास नहीं हो पाते हैं, और वो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे शरीर में, सारे शरीर में पोषक तत्व सही मात्रा में मिल पाता है, ऑक्सीजन का सेक्रेशन ठीक हो जाता है, और हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो लचीला हो जाता है, और लचीला होने की वजह से ब्लड वेसल्स जो है सो डायलेट हो जाता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। सेकेंड थिंग, हमें हार्ट अटैक को रोकने के लिए एक और जो दवा देते हैं वो है आपको इक्कोएस्प्रिन, या फिर अदर टाइप के जो एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट्स दवा है। एंटीप्लेटलेट्स मींस आपके शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होगा। लेकिन जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है वो ऑलरेडी रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से वो एक्सरसाइज जो है सो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है, वो ऑलरेडी एंटीप्लेटलेट्स का काम करता है। सेकेंड थिंग, शरीर में जो हम विभिन्न प्रकार के मेडिसिन लेते हैं,
वो मेडिसिन के लिए क्या होता है कि हार्ट के जो भी हार्ट के चारों चेम्बर्स है, ऊपर के दो, नीचे के दो, ऊपर के उसको अलिंद कहते हैं, दाया और बायां अलिंद, और नीचे को जो है सो निलय कहते हैं, दाया या बायां निलय, वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स। तो इसमें क्या होता है, इसके जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो भी मेडिसिन लेने की वजह से कम हो जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज की वजह से हमें जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है सो हार्ट के मसल्स का बढ़ जाता है, और ठीक मात्रा में ब्लड पंप होता है, और ब्लड पंप होने की वजह से शरीर में सारे प्रकार के जो है सो पोषक तत्व है वो ठीक मात्रा में पहुंच जाता है। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करना चाहता हूं, ये डिस्कस करना चाहता हूं कि आजकल लोग जो ज्यादा जगते हैं उसको जगने की वजह से एक प्रकार का ब्लड प्रेशर है जिस ब्लड को हम बोलते हैं आइसोलेटेड ब्लड प्रेशर। आइसोलेटेड ब्लड प्रेशर में जो हमारा ब्लड के दो ब्लड प्रेशर के दो कंपोनेंट्स है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। उसमें क्या होता है, या तो सिस्टोलिक बढ़ता है या फिर डिस्टोलिक बढ़ता है। डिस्टोलिक, विशेषकर डिस्टोलिक ही उसमें बढ़ता है। डिस्टोलिक मतलब हमारा जो है सो नीचे का ब्लड प्रेशर, उसमें क्या, अगर डिस्टोलिक बढ़ता है तो हार्ट जो है सो ठीक प्रकार से ब्लड को फिल नहीं कर पाता है, और जिसके वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, मतलब सडन कार्डियक जो है सो सडन रूप से बंद हो जाता है। आपने जनरली अभी होगा। तो दूसरी चीज और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग खेल, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल लोग जो जिम में जाते हैं वो आपको एक्सटर्नल सब्सटेंस लेते हैं जिसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या है, एस्ट्रॉइड्स की वजह से जो है सो बहुत सारे जो है सो कॉम्प्लिकेशंस अभी आ रहे हैं, जो हमें लोगों को ये बताना है। पहला कॉम्प्लिकेशंस ये जाते हैं कि एस्ट्रॉइड्स लेने की वजह से हमारा जो लीवर है वो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का जो है सो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करने की वजह से ब्लड क्लॉट होता है और सडन कार्डियक हार्ट अटैक आ जाता है। आपने जिम में होगा कि जिम करते करते लोगों को जो है सो हार्ट अटैक आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि एक जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि वो व्यक्ति किसी प्रकार का एक्सटर्नल सब्सटेंस, या ये जो एक्सटर्नल सब्सटेंस ले रहे हैं वो आपके बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो इसलिए हमें ये इस टाइप के जो है सो जो एक्सटर्नल सब्सटेंस है उसको लेने से मना करना चाहिए। स्टेरॉइड्स हमें किसी भी हालत में नहीं लेना है। स्टेरॉइड्स लेना भी है तो उसके लिए जब तक हमें डॉक्टर्स नहीं बोले, डॉक्टर्स मीन्स ट्रेंड डॉक्टर्स, एमडी मेडिसिन कम से कम होना, तब तक हम उसको न ले। इससे जो है सो हम अपने लाइफ को रिस्क में डालेंगे। जो नेक्स्ट कारण है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, वो पहला नेक्स्ट कारण है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी एक्चुअली ओबेसिटी डिजीज नहीं था, लेकिन इन द ईयर 1983 फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर दैट द ओबेसिटी इज अ डिजीज। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, means that the excessive accumulations of fats in your body। ये भी क्या करता है आपके हार्ट रिलेटेड या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली ओबेसिटी आपके केवल हार्ट डिजीज को ही नहीं बढ़ाता, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को नहीं बढ़ाता, ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता, ये आपको डायबिटीज को भी बढ़ाता, और आपके जो शरीर में जो भी ज्वाइंट्स वगैरह है उसको भी जो है सो ये डिस्टर्ब करके उसको भी डैमेज करता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपको थोड़े दिनों में जो है सो ज्वाइंट्स पेन चालू हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडिसिन मेडिकल शॉप में मिल जाते हैं, जैसे स्लिम बॉडी, बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए अगर हम डेली एक्सरसाइज करें, थेरेपेटिक एक्सरसाइज, तो क्या है, इससे हमारा जो है सो शरीर में जो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स होता है वो कम हो जाएंगे, और जिसके वजह से हमारा शरीर अपने जो है सो उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ठीक रहेगा, और उससे जो है सो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट तो आपको लाइफ स्टाइल डिजीज है, वो है
डायबिटीज। एक्चुअली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सबसे खतरनाक है आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज के लिए या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। आजकल आपने देखा होगा कि डायबिटीज की मात्राएं इवन इन स्कूल में भी बढ़ रहे हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं उनको टाइप 1 टाइप का डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज उसको बोलते हैं जिसमें हमारे शरीर में जो नॉर्मल अमाउंट है इंसुलिन का वो नहीं बन पाता है। डायबिटीज मीन्स द this is the endocrine related disease, and this is in which either the insulin is produced amount at within normal level or less amount from the pancreas। ये pancreas से related disease है और ये भी बहुत खतरनाक डिजीज है। एक ऐसा रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उनको 88% लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावनाएं रहती है। द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन दैट दोज पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर आर मोर इन द लाइफ रिस्क, एंड 88% ऑफ द पीपल्स हैज डाइड ड्यू टू disease। सेकंड थिंग, डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज को हम गांव देहात में इसको शक्कर का या चीनी का बीमारी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा शक्कर या चीनी का बीमारी। इसका कारण क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बनता है, जो इन प्रोडक्ट उसका ग्लूकोज होता है, और हमारा ब्लड जो है सो गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा होने की वजह से हमारा शरीर में जो है सो ब्लड ठीक से पास नहीं हो पाता है, और उसको भी पास करने के लिए हमें जो है सो हार्ट को जो है सो ज्यादा वर्क करना पड़ता है। हार्ट जिस तरह से ज्यादा वर्क करता है उसी तरह से हमारा जो है सो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट पे भी असर आता है। और जो ओबेसिटी के जो डायबिटीज के लोग हैं उनको हार्ट अटैक आने की संभावना इसलिए होती है कि उनको जो है सो ब्लड क्लॉट हो जाएगा शरीर में, या जो ब्लड वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरीज है, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाएगा और हार्ट में ब्लड पास नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। बहुत सारे मेटफॉर्मिन इत्यादि नाम के मेडिसिन है, जो मेडिसिन हम डायबिटीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमने अभी जो आपको स्टेटिन बताया जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज किया जाता है, उसका भी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है कि उसका यूज करें, क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट है उनमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की ज्यादा संभावना रहती है, एलडीएल वीएलडीएल बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, और इस स्थिति में जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें जो है सो अवरोध पैदा हो सकता है, आर्टरीज में अवरोध पैदा हो सकता है, और उससे जो है सो ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, यदि आप ब्लड प्रेशर के है तो आपको लिए अलग दवा लगती, डायबिटीज के लिए आपको अलग दवा लगती। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज करते तो क्या होता है, एक्सरसाइज के माध्यम से हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो हार्मोन्स क्या करता है, हमारे जो चयापचय की क्रिया है जिसको हम मेटाबॉलिक फंक्शंस बोलते हैं, उसके फंक्शंस को वो तेज कर देता है, और उसके तेज होने की वजह से हमारे जो शरीर के जो इंसुलिन है जो अधिक मात्रा में पैनक्रियास से बन रहा है उसका वो बर्न हो जाता है। इसीलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उसको डॉक्टर क्या बोलता है कि आप कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि यदि हम शुरू से ही कोई अगर फिजिकल एक्टिविटी करें तो इस तरह के जो डेंजरस बीमारी है वो इस तरह की बीमारी जो है सो हमें नहीं हो पाएंगे। आजकल लोगों में स्मोकिंग और जो तंबाकू खाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जिसके वजह से भी जो है सो हमारा जो है सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मैं आपको पहले बताया कि ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज रिस्पॉन्सिबल है, साथ में आपको स्ट्रेस भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से जो स्मोकिंग के जो साइड इफेक्ट्स है, स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग में जो निकोटीन जैसे मात्रा होती है, निकोटीन ये क्या करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो करते, और क्या होता है ब्लड वेसल्स के नैरो होने की वजह से उसमें भी ब्लड पास नहीं हो पाता और हमारा ब्लड वेसल्स जो है सो कमजोर हो जाते हैं, आर्टरीज हमारे कमजोर हो जाते हैं। आर्टरीज कमजोर होने की वजह से क्या होता है कि हमें फिर जो है सो
इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन जो प्रत्येक दिन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर किसी खेल में जो है सो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कम इसके जो है सो एडवर्स इफेक्ट जो है स्मोकिंग के या ड्रिंकिंग के या टोबैको के, वो कम हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब अर्थ ये नहीं है कि आप स्मोकिंग करो, स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी किसी लोगों को हैबिट होती है जो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, और वैसे लोग भी अगर लो इंटेंसिटी, लो इम्पैक्ट और मॉडरेट इम्पैक्ट से एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको जो है सो स्मोकिंग के जो एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं, नकारात्मक परिणाम होने वाले हैं, वो कम हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, एक और जो समाज में सबसे बड़ी समस्या बढ़ रही है, वो है टू मच अल्कोहल ड्रिंक। आपने देखा होगा कि अल्कोहल की वजह से बहुत सारे जो है सो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अल्कोहल सबसे पहले क्या करता है, हमारे किडनी को डैमेज करता है। किडनी डैमेज होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, और उसका जो अंततः आखिरी परिणाम होता है, वो हमारे कार्डियक सिस्टम पे आ जाता है, हमारे हार्ट पे आ जाता है। लेकिन यदि हम एक्सरसाइज करें तो क्या होता है, एक्सरसाइज करने की वजह से जो इनके जो साइड इफेक्ट्स है, वो भी कम हो सकते हैं। दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहता हूं कि लोगों में एक ऐसी ट्रेंड्स है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा और हमें नींद अच्छा आएगा। ये तो सही है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से नींद अच्छे आते हैं, लेकिन यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी अच्छा नींद आएगा, और एक्सरसाइज के बाद का जो नींद आएगा वो आपको दिन भर फ्रेश रखेगा, आप दिन भर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अल्कोहल या किसी मेडिसिन की वजह से नींद आती है अच्छी, तो आपको दिन भर जो है सो अच्छी नहीं लगेंगे, आपको दिन भर जो है सो लेजीनेस फीलिंग होगा वो। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की बात है। तीसरी एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हम हेवी एक्सरसाइज करें या फिजिकल एक्टिविटी करें। हेवी एक्सरसाइज की वजह से भी जो है सो क्या होता है, हमें जो है सो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी या बहुत सारे जो जिनमें बहुत सारे रनिंग इवेंट्स स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उनका जो है सो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं रहती है खेल के दौरान ही। बहुत सारे इविडेंसेस हम लोगों को हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्लेइंग फुटबॉल और एनी अदर गेम्स, दे स्पॉइलेज देयर लाइफ और लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग एक्टिविटी। इसका कारण क्या होता है, हेवी एक्सरसाइज। इसमें भी क्या होता है, हार्ट इसलिए बंद कर देता है कि एक्चुअली हार्ट का जो मैकेनिज्म है वो पंप करना है, लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से हमारा हार्ट पंप नहीं होकर वाइब्रेट होने लगता है, जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है। यही चीज आपको जिम में भी होते हैं। जिम में भी हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, हेवी वेट उठाते हैं, जिससे हमारा हार्ट पंप नहीं होने की वजह से हार्ट वाइब्रेट होने लगता है, और हमें जो है सो सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं हो जाती है। सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो बताना चाह रहा हूं कि अभी एक्सरसाइज, सभी जितने भी बीमारी है उसके लिए एक्सरसाइज एक ही मेडिसिन है। यदि आप डायबिटीज है तो आप डायबिटीज के लिए अलग मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के लिए आप अलग मेडिसिन ले रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो उसके लिए अलग मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज एक मल्टी डायमेंशनल मेडिसिन है जो एक ही साथ कई चीजों को ठीक करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अलावा और भी कुछ ऐसे बीमारी है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि आजकल भी आपने देखा होगा कि लोगों में कैंसर और किडनी डैमेज बहुत हो रहे हैं। कैंसर होने की वजह से क्या है, हमारे देश में जो है बहुत सारे मोर्टेलिटी रेट बढ़ गई है। इवन जो पंजाब या हरियाणा के लोग हैं, वहां पर कैंसर की मात्रा ज्यादा पाई गई है। उसका कारण क्या है कि पेस्टिसाइड का हमने ज्यादा यूज किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसर्च अवेलेबल है इस दुनिया में जो ये बताती है कि जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनको कैंसर होने की संभावनाएं कम रहती है। सेकेंड थिंग, मैं आपको एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि
क्रोनिक स्ट्रेस, हमने एकेडमिक स्ट्रेस के बारे में बताया, एक और भी एक क्रोनिक स्ट्रेस है जो बहुत समय से आदमी को स्ट्रेस चलते आ रहा है, वो भी हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जो है सो एक ओरिजिन है। और स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे अच्छा जो मेडिसिन है वो है वॉकिंग या हल्का सा रनिंग। उससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। हमने आपको पहले बताया कि वॉकिंग और रनिंग करने की वजह से इंडोफ्राइन नाम का हार्मोन्स है जिसका सेक्रेशन प्यूटिटरी ग्लैंड से होता है, और ये क्या करते हैं, आपको रिलैक्स फील करते हैं, मेंटली रूप से भी आपको रिलैक्स फील करते हैं। सेकेंड थिंग, आपने देखा होगा कि आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत सारी समस्याएं है इस दुनिया में। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतने बढ़ रहे हैं, विशेषकर जो युवा है उनका कारण ये है कि उनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं, वो बहुत ज्यादा बेरोजगार है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम जो है सो डेली एक्सरसाइज करें। इसके अलावा एक्सरसाइज के वजह से और भी हमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हमारा एजिंग बढ़ जाता है, हमारे स्किन्स अच्छे हो जाते हैं, हमारे जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज है, हमारे जो शरीर के फंक्शन करने के विभिन्न सारे ऑर्गन्स है, वो ठीक प्रकार से रेगुलरली काम कर सकते हैं। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज हमें क्या करती है, वो फिट करती है और हमारे जो है सो शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। इसलिए आवश्यक है कि हम एक थेरेपेटिक एक्सरसाइज का उपयोग करें, ऐसा एक्सरसाइज जो शरीर के जो है सो सभी मेडिसिन के लिए काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, वेलकम टू एनी क्वेश्चंस? हेलो, एनी क्वेश्चंस? Any questions? Welcome.